Hello everyone. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to my channel. In last class, the chapter microorganism, friend and foe, we studied till the useful and the benefits of microorganisms. Today we are going to study about the harm of the microorganisms or harmful effect of the microorganism. Okay, so harmful microorganisms, how they are harmful, what are the disease they cause, we will be seeing it here. Okay, so harmful effects of microorganisms, today we have to study that. Okay, so let's see that what we have in the harmful effects of microorganisms. Fine. So some microorganisms are harmful in many ways. There are different ways in which they are harmful. So how they are harmful, let's see this. In human beings, plants and animals, some of the organisms cause disease. Such disease causing organisms are called pathogens. Okay, so in plants and animal, if the disease is caused by the microorganisms, those organisms are known as pathogens. Okay, so third, food, clothing, leather are spoiled due to some harmful effects of microorganisms. Food and leather, clothing, these all are also affected. Like food, the spoiling of food, leather, the tanning of leather, the fungal growth on the leather, that is also due to the microorganisms. Okay, so these are the three things which happens because of the microorganisms. Now, disease causing microorganisms in human. Okay, so what happens? The disease causing microorganisms are basically known as pathogens. Okay, pathogens are what? They are the carrier. They are carrier of disease inside our body. The pathogens, they are different. They enter our body through various purposes. Like जिसको हम कहते हैं vectors. ओके जो ये पैथोजेंस होते हैं ये हमारे बॉडी में किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू इंटर करते हैं. द बैक्टीरिया, द फंगस, the viruses, they enter inside our body through various ways, which has been written here, that they enter our body in a different way, like air when we breathe, the water when we drink, the food when we eat. They can also get transmitted by direct contact with the infected person or carried through an animal. Okay, so this thing can happen. Now, microdiseases such as cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis that can be spread from an infected person to a healthy person. That is also known as communicable disease. Okay, fine. Through air, water, food, and physical contact are called communicable disease. Here, then after that, there are some insects and animals which act as a carrier of diseases. Okay, there are some insects and animals which act as a carrier of the diseases. Fine, disease causing organism. For example, housefly is one of such carrier that fly sits on the garbage. अब हाउस फ्लाई सबसे बड़ा कैरियर है. क्यों? हाउस फ्लाई हर गंदे जगह पे, हर वेस्ट पे, हर जगह जाती है, फिर आके आपके खाने पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे बैठते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसके वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं. फाइन, सो दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ, लाइक जिसके वजह से सबसे ज्यादा आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम होता है. ठीक है, ये सब हो सकता है. इवन मस्किटो एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस मस्किटो, इट इज द कैरियर ऑफ द पैरासाइट ऑफ malaria. Okay, that is quite dangerous. We all deal with the same this situation in rainy season. Okay, then after that, all mosquito breed in water. Okay, सारे mosquito कहाँ water में breed करते हैं. So one should not let water collect. Okay, हमें पानी को जमा होने देना नहीं चाहिए, because water, the water is getting stagnant, the mosquito will start breeding, and by the bite of the mosquito it can lead to malaria, and then after that malaria it will be leading to the dengue. Okay, fine. So these are few of the harmful effects of bacteria. Now we are having this table. This table has few of the diseases and their causes. Okay. Okay, so some common human diseases caused by microorganisms. Okay, so these are the human diseases. Tuberculosis. Okay, how it is being spread? Bacteria. Mode of transmission, air. What happens? Prevention कैसे कर सकते हैं? Keep the patient in complete isolation. Keep the personal belonging of the patient away from those of other. तो इस तरह से हमने सारे डिजीजेस को समझाया. जैसे मीजल है, ठीक है. ओके, मीजल किससे होता है? वायरस, एयर कॉन्टैक्ट, उसका कैसा उपाय हो सकता है? वैक्सीनेशन. ओके, बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे. ओके, फिर हमारे पास चिकन पॉक्स है, एयर एंड वाटर से फैलता है, वायरस की वजह से है. ठीक है, पोलियो. ओके, पोलियो के लिए तो हमारे पास वैक्सीनेशन है अभी. ओके, देन उसके बाद कॉलेरा एंड टाइफॉइड बिकॉज ऑफ
bacteria, cholera effect gets transmitted from water and food. Typhoid from water. If you are not drinking a proper water, hygienic water, these two diseases are majorly affected because the cause of major these two diseases are because of water and contaminated water and contaminated food. Then hepatitis A, that is virus. Drink boiled water and vaccination. Okay, this is also due to the water, impure water. And then after that, malaria, we all know it happens due to the protozoa, the mosquito, female mosquito after the bite. Okay, so you need to be using the mosquito net, mosquito repellent, and even you should not be allowing the stagnating of water. Okay, so this table is important. Okay, you should go through this table. Even disease causing microorganisms in animals. Okay, the diseases are being caused in animals also. So some of microorganisms not only cause disease in human and plants, but also in other animals. Okay, for example, anthrax is an example of dangerous. Okay, anthrax is an example of dangerous human and cattle disease caused by bacterium. This example you need to be learning. Okay, right? So for example of anthrax is the example of dangerous human and cattle disease caused by bacterium. And then this is foot and mouth disease of a cattle is caused by this virus. कहाँ पे होता है बीमारी? Foot and mouth में. Clear? So this is one of the disease. And after that, disease causing microorganisms in plants. Okay, some plants also, they are also getting affected by the microbes. Okay, so to deal with that, we use chemicals like pesticides to kill the microbes which affect their yield. So in this chart you can see the different kind of fruits, plant diseases, the name of the plant diseases, microorganisms, the causing microorganisms, the mode of transport. Okay, transmission. Okay, so these are the diseases, these are the bacteria, the viruses, the fungus, and the mode of transport. Clear? So this table is also important for you. After that, food poisoning. Food poisoning is a major thing that happens to many people these days. Why? What is the reason for food poisoning? That we all are depending upon so much on junk food. We go to the street food, so the food is not kept properly, and the food is kept in open. So what happens that the flies from somewhere is sitting on the food, or the food is quite stale, it is contaminated, and if we consume that food, you will be leading to infection in the stomach, or even lead to the food poisoning. That may lead to dehydration, loose motion, vomiting. Okay, these are the reason for the food poisoning. The toxicity of the food is known as the food poisoning. Food poisoning in human could be due to the consumption of spoiled food. Okay, खराब खाना खाने से हमको हो सकता है. Now, अब खराब खाने से बात आता है कि हमको फूड को क्या करना चाहिए, फूड प्रिजर्वेशन हमको करना चाहिए. तो फूड खराब होता है, क्या होता है? Microorganisms spoils our food. Spoiled food emit bad smell and has a bad taste and change of color. Here are some common methods to preserve our food. अब खाना खराब होता है तो खराब होने से उसमें क्या हो जाता है? बैक्टीरिया आ सकता है. हमको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं फूड के जिसको हमको बहुत लंबे टाइम तक रखना पड़ता है. राइट, जैसे पिकल्स हो गए, हम बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं. सॉसेजेस हो गए, हम बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं. उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो हम कुछ मेथड्स देखेंगे जिससे हम फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट मेथड वी आर हैविंग एज अ केमिकल मेथड. इन केमिकल मेथड व्हाट वी डू, प्रिजर्वेटिव्स लाइक, हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, बट ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, लाइक सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल. ओके, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल को आप क्या कीजिए, आप अचार में देखा होगा आपने, सॉल्ट और एडिबल ऑयल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं. तो क्या करते हैं, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रोक देते हैं. फाइन. सेकंड, वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स. सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्व करते हैं. क्यों? एसिड भी माइक्रोब्स का ग्रोथ को रोक देगा एंड सिवन सॉल्ट भी. तो पिकल्स, जो पिकल्स होंगे वो लंबे टाइम तक चल सकते हैं. ठीक है. सोडियम बेंजोनाइड एंड सोडियम मेटा bisulfate are common preservatives which are used in jams, sausages to check the spoilage. ठीक है. तो जैम और सॉस में ये दो प्रिजर्वेटिव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. क्लियर? नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. सबसे ज्यादा कॉमनली हम प्रिजर्वेशन करते हैं कॉमन सॉल्ट, जो घर पे यूज होने वाला नमक है. लेकिन हमने अचार में देखा होगा, आप नमक मिला के रख दीजिए तो उसमें जल्दी खराब नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सॉल्ट माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है. तो प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. मीट और फिश, जो पैक्ड मीट और फिश मिलता है या शिप पे लेके जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट से मिला के उसको रख देते हैं, जिससे बहुत लंबे टाइम तक वो बचा रह सकता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है. सेकंड, सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मेंटर. जो आंवले का अचार हम बनाते हैं, कच्चे आम का, अदरक का, ठीक है, हम जो अचार बनाते हैं, उन सब चीजों को हम प्रिजर्व करने के लिए रख सकते हैं. क्लियर? देन प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर का भी यूज कर सकते हैं हम.
प्रिजर्वेशन के लिए। शुगर इज यूज फॉर प्रिजर्विंग जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व। अब शुगर क्या करता है, शुगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। पानी ज्यादा नहीं होगा तो स्पॉइल होने के चांसेस कम। शुगर क्या करता है, उसका वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, जो जैम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वाश है, उनको हम क्या करते हैं, शुगर की हेल्प से प्रिजर्व करते हैं। फिर इट रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट, जैसा मैंने आपको बताया, मॉइस्चर को वो कम कर देता है, ताकि मॉइस्चर कम होगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ कम हो जाएगा, राइट। देन आफ्टर दैट प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ओके, ऑयल और विनेगर की हेल्प से आप प्रिजर्व कर सकते हैं। इसको हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, आप इसको ऑयल की और विनेगर की हेल्प से आप प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर। देन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से हमारी सबसे बड़ी जरूरत वाली चीज को प्रिजर्व किया जाता है, जिसको हम पैस्चराइजेशन भी कहते हैं। पैस्चराइजेशन क्या आता है, हमारे मिल्क, क्योंकि दूध बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है, बट हमारे तक पहुंच सके, दूर तक ट्रांसपोर्ट हो सके, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा मेथड, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। क्या करते हैं हम, बॉइलिंग ऑफ मिल्क किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आफ्टर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। हम भी घर में दूध को उबालते हैं, इसके उबालने की वजह से उसके अंदर का बैक्टीरिया खत्म हो जाता है एंड वी कैन यूज द मिल्क फॉर द लॉन्गर टाइम। सो पैस्चराइजेशन आपने देखा होगा, पैकेट पे लिखा होता है कि मिल्क इज पैस्चराइज। पैस्चराइज क्या होता है, मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और फिर सडन कूलिंग करते हैं उतने ही लो टेम्परेचर पे। तो सडन हीटिंग एंड सडन कूलिंग की वजह से जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो उस तरह से मिल्क को हम कहते हैं पैस्चराइज मिल्क। सो ये सेम प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। सेम कीप फूड एट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब लो टेम्परेचर होगा, गर्मी कम होगी तो भी फूड खराब होने के चांसेस क्या होंगे, कम। और ये रहा पैस्चराइजेशन का प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, जिसे डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज पैस्चराइजेशन, जो मिल्क को करते हैं, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टूड। देन स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ठीक है। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ड्राई फ्रूट्स, आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, अगर उनको एयर टाइट कंटेनर पैकेट में पैक किया जाए तो उनको लंबे टाइम तक चलाया जाता है। क्यों, मैक्सिमम बैक्टीरिया, मैक्सिमम मॉइस्चर किसके थ्रू आएगा, एयर के थ्रू आएगा, राइट। एंड इवन द बैक्टीरिया ऑल्सो। तो इन दैट केस आप अगर पैकेजिंग अगर प्रॉपर है तो बैक्टीरिया इफेक्ट आपको किसी भी तरह से नहीं करेगा। क्लियर। सो दिस आर द मेथड्स, फ्यू मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ vegetables, fruits and all the food eatable products. Okay, now we are having the last topic, okay, that is basically the nitrogen fixation and the nitrogen cycle. Okay, nitrogen fixation क्या होता है, nitrogen fixation is a process in which naturally blue green algae और rhizobium नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में रूट में प्रेजेंट होता है और वो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। उसका रीजन है, फिक्स करने के पीछे का रीजन है कि प्लांट को ग्रोथ के लिए जो कंपोनेंट चाहिए दैट इज बेसिकली द नाइट्रोजन। ओके, सो ये अपने नेचुरल प्रोसेस से नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। राइजोबियम, ओके, इज इन्वॉल्वड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। नाइट्रोजन आल्सो गेट फिक्स थ्रू एक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो बिजली कड़कती है तो उससे भी हमारा नाइट्रोजन क्या होता है, एटमोस्फेयर में फिक्स होता है। नाउ नाइट्रोजन साइकिल, अब नाइट्रोजन का साइकिल, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन किस तरह से आता है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन सबसे जरूरी पार्ट है। प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स आर अवेलेबल 78% इन आवर एनवायरनमेंट। ओके, मतलब नाइट्रोजन जो है हमारे एनवायरनमेंट 78% के लेवल पे काम कर रहा है। Bacteria and blue green algae present in soil for fixing of nitrogen from the atmosphere and convert into compounds of nitrogen. ये bacteria and blue green algae भी help करते हैं उसको नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने के लिए, ठीक है। अब हम डायरेक्टली हम देखते हैं हमारा नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिकल इमेज फॉर्मेशन है, किस तरह से नाइट्रोजन आता है। तो जैसे नाइट्रोजन एटमोस्फेयर से आया, ठीक है, यहाँ पे इस लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में लेग्यूमिनस रूट नूडल्स ने इसने क्या किया, उसको सॉइल में फिक्स कर दिया। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया। कि नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन आपका N2 है, ठीक है, NH4 हो गया, अमोनिया बन गया। फिर अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। क्योंकि हर जगह पे अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग यूज होता है, हर जगह पे सेम कंपाउंड का यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए ये बैक्टीरिया नेचुरली अपने कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, प्लांट ने उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। प्लांट फिर उसको वापस रिलीज कर देगा एटमोस्फेयर में। फिर प्लांट्स के रूट्स की वजह से
क्या हुआ, प्लांट जब डेड होते हैं तो डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोज करने वाला बैक्टीरिया है, उसको वापस कहाँ मिला देते हैं, सॉइल में। सॉइल में मिलाने के बाद फिर से क्या बन जाता है, अमोनिया। इवन एनिमल स्क्रीटा, और एनिमल के मरने के बाद भी वो क्या सॉइल में मिलकर क्या बन जाएगा, अमोनिया। फिर नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स को आप बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन नाइट्रेट से ही नाइट्रेट्स को ये फिर से नाइट्रोजन बना देंगे, ठीक है, तो वापस वो एटमोस्फेयर में चला जाएगा। ये सेम प्रोसेस बार बार होता रहता है। एटमोस्फेयर से आया, प्लांट ने उसको फिक्स किया सॉइल के अंदर, फिर वो प्लांट्स को बैक्टीरिया ने कंज्यूम किया, या बैक्टीरिया के अंदर प्लांट जो सॉइल में जो बैक्टीरिया था उसने उसको सॉइल में फिक्स किया, फिर अमोनिया बना दिया। अमोनिया को यहाँ से नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन से क्या बन गया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स बना, नाइट्राइट्स से क्या बन गया, नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट से डिनाइट्रिफिकेशन जाता है वापस एटमोस्फेयर में, या फिर प्लांट्स उसको एसिमिलेट करते हैं, प्लांट्स को एनिमल कंज्यूम करता है, एनिमल डिकम्पोज होकर फिर से क्या बना जाता है, अमोनिया। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो आपको अगर ये साइकिल समझ आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह का साइकिल भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एटमोस्फेयर का नाइट्रोजन लाइटनिंग की वजह से आया एटमोस्फेयर में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको लेकर आया 2 मेथड से। फिर बैक्टीरिया क्या करता है, फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो हमने वहां पे देखा नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ओके, वो क्या बन गया, सॉइल के अंदर आ गया, इससे भी सॉइल के अंदर आ गया। प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल ने। एनिमल जो डेड हुआ या उसके वेस्ट में से अमोनिया बना, अमोनिया फिर कहां आ गया, सॉइल के अंदर। फिर सॉइल ने फिर उसको रिलीज किया, बैक्टीरिया उसका डीनाइट्रिफिकेशन करेगा और फिर से वो नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज most important topic of this chapter. Clear? So here the chapter is ending. Okay, so this is it we have in the chapter. So if you have any doubt, you can contact me.